उधर फेंक दिया। छोड़ दीजिए। Good morning, everyone present here. Let me start the program with a beautiful slogan. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Good morning, everyone, once again. Honorable Chief Minister, Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu Ji, Honorable Engineer Tabat Ji, Honorable Minister Education, Cultural Affairs, Department of Indigenous Affairs, Arunachal Pradesh, Shri Sonam Chombe Ji, IRS Commissioner to Honorable Chief Minister, Arunachal Pradesh, and other dignitaries on dais. I welcome you all on behalf of everyone. Teachers are nation builders. They spread the light of education and knowledge all around. Teachers are like lighthouses that guide the sheep of students to the shores of life. They are magicians who make miracles of knowledge happen. This world would be a much darker place to live if there were no teachers. With this, let's move forward to our felicitation ceremony. To felicitate Shri Pema Khandu Ji, Honorable Chief Minister, Arunachal Pradesh, I would request Shri Market Kadu, Director, Secondary Education, Government of Arunachal Pradesh, to come forward. Please, sir. Thank you so much, sir. To felicitate Engineer Tabat Ji, Honorable Minister, Education, Government of Arunachal Pradesh, I would request Shri Otip Tayin Ji, Joint Director, Elementary Education, to come forward. Thank you so much, sir. With this, I request representatives from Tamsa tribe to felicitate our chief guest and guest of honor of today's event. Please come forward.
Thank you so much, everyone. With this, we will move forward to our lamp lighting ceremony and floral tribute to late Dr. S. Radhakrishnan, which is our traditional auspicious tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. I would like to invite our Honorable Chief Minister, Mr. Pema Khanduji, to please start the ceremony. And other dignitaries from Dais, please come forward to do the auspicious occasion. Everyone, please rise up for the occasion. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Everyone, please settle down. With this, let us invite the students of Siam Royal School and Dying Elite Memorial Government High Secondary School to please come on stage for a wonderful performance. Please, students.
Respected Commissioner to Honorable CM, Special Secretaries Elementary and Secondary Education, Director Mission Shiksha, Additional Secretary Education, Directors and officials from the directorates, SCRT, ATA, our beloved teachers, our CBOs, guests, friends from media, ladies and gentlemen. A very good morning and a very happy Teachers' Day to all of you. At the very outset, I would like to welcome and thank our Honorable CM for sparing his time to be the chief guest for our function today. We are very grateful, sir. Thank you for being here. And I'd like to thank our Honorable Minister also for always guiding us and, of course, being with us today. I would like to congratulate all our awardee teachers. It's a big achievement in your life, and I really, from the bottom of my heart, would like to congratulate you all on this achievement. And I take this opportunity today to highlight a few quotes of Dr. S. Radhakrishnan, which I believe are relevant even today. He once said, "One who ceases to think, ceases to learn." So that is a very important quote according to me, because we as teachers, we as individuals, even I as an official, sometimes we start stagnating and we stop learning. So my request today is that all teachers out here, we should keep on learning and reinventing ourselves. Because when we were scrutinizing the applications of our awardee teachers, we realized some of them have gone in for publications of their work. Some of them have invented innovative ways of teaching. Some have started teaching through the smart classroom, through online mechanisms, or whatever is available with them, without even telling them. So even without proper, what we say, motivation, they are doing their jobs in a different way. It's not that they're doing something extra, they're just doing it in a different way. So I request that all teachers, we should keep on learning. For this purpose, even in our Mission Shiksha, we are now introducing trainings round the year for teachers, for skill upgradation, for subject-specific knowledge. This is because we realize that it is important at every stage of life to hone your skills. Even for us as civil servants, the scheme Karma Yogi has come. If you have read about it, it is basically to earn specialization rather than being a generalist. So I request all of you to keep on understanding and honing your skills. This is very, very important. Second important thing, what Dr. S. Radhakrishnan said, that books are a means by which we build bridges between culture. Now, in an age which is like too much digitally active, when the students are socially active on media and social media, they are hyperactive, it is very important that we understand the importance of book reading, which is completely going away. It is fading away slightly. You see, the students don't read. Actually, we all also don't read. We are on our mobiles, we are on our tabs, we are doing like online kind of a Kindle kind of a reading, but we are not doing the book reading. Reading of book gives you patience, it gives you composure, besides giving, of course, the knowledge. So it is important that you keep reading books. Ask your students to read whatever NBT books, whatever NCRT books, whatever the reading corners, libraries, whatever is being established. Now we are taking the Pustakalaya project for primary kids in a bigger way. So ask them to read, because new education policy talks about foundation, literacy and numeracy, basically with the idea that one should have the habit of reading. So it is important that we inculcate that habit of book reading amongst the students. It is very, very important. And also, Dr. Krishnan said that true teachers are those who make us think for ourselves. We have to think, because teachers, according to me, I till today respect all my teachers. Whatever I feel I am today is because a lot goes to my teachers, of course, beside the parents. But the teachers are the best minds, according to me, in the society, and we have to nurture our students. You have to explore that creative talent in a student, because they spend half of their days with you. Please channelize their energies. Please tell them to think differently. Tell them about current affairs. Tell them about what is happening around. Because you have to ask them those questions which churn their mind and soul. You just have to don't go by the rote learning of NCRT books. Please tell them to think. It is very, very important. Because in a state which is engulfed by drugs, even in kids to a large extent, it is very important to channelize their energies. Now, of course, you will ask the questions like how to channelize their energies. In our schools, we don't have meals, we don't have playgrounds, we don't have any alternate mechanism. How do we do that? Now, when we and you read about NASA and Chandrayaan and Mangalyaan, all of us don't have to sit in the spaceship one day. Do we have to sit? But we
read about them, because it's a fascinating journey of scientists. That's what the aim is to teach them about. If we tell them about Mirabai Chalu, we don't have to make them weightlifters one day. The idea is to tell them about an inspiring person so that they get inspired. So tell them about things, because generally मैंने देखा है कि what the teachers have this opinion, and even we have the छोटे जगह में रहना है, छोटे शहर में पढ़ना है, तो ज़्यादा पता के क्या होगा, रहना तो यही है, ज़्यादा ईटानगर चला जाना है, ऐसा नहीं है. If we tell them about happenings in the world, it will put their mind in thinking. That is very, very important. So I just like to end with these thoughts with you, because it is you and us who will change the society as far as our next generation is concerned. It's very, very important. So I will end with just another quote, that he said, "A life full of joy and happiness is only on the basis of knowledge and science." So let's, on this Teachers' Day, all of us in the education fraternity take this pledge to be more knowledgeable ourselves and to make our students more knowledgeable. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your unmatched guidance and beautiful words. I hope all the teachers present here will remember your words and thoughts and apply them in daily life. On the very auspicious occasion of Teachers' Day, we will be releasing a third language book of 8 tribes by SCERT. May I request Srimati Soumya Saurabh, IAS, Special Secretary Elementary Education, Government of Arunachal Pradesh, to take this session forward. Please, ma'am. Thank you, Natasha. Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Honorable Education Minister of Arunachal Pradesh, respected Commissioner to Honorable CM, respected Commissioner Education, dear colleagues on the dais, ladies and gentlemen, a very warm good morning to all of you, and a very happy Teachers' Day to the teachers present here. It's a great day for the department on this occasion of Teachers' Day celebration that the third language books are being released today pertaining to 8 tribes of our state. It is important to mention here that the new education policy envisages the usage of third language for better understanding of concepts, especially at elementary level. To take this forward, the team of SCERT Arunachal Pradesh and representatives of community-based organizations collaborated to prepare these books for upper primary classes, that is from classes 6 to 8. I would like to put it on record that these books are a result of rigorous hard work and dedication by the Textbook Development Committee of all the CBOs and SCERT. Sir, several consultation workshops were being conducted with the CBOs for bringing out the books in the present shape today. I hereby would like to mention the contribution of the publication team and the printing team. This is a proud moment for the department, as these books are first of its kind publication which has completely been developed, designed and printed in-house. Today, third language books of 8 tribes shall be released, namely Wancho, Galo, Tagin, Tansa, Nishi, Idu Mishni, Kaman Mishni and Tara Mishni. Of this, there are books for class 6 in all 8 tribal languages, and books for class 7 and 8 in Wancho, Tagin and Galo tribal languages. In total, there are 14 books which shall be released today. Honorable CM Sir and Honorable Education Minister Sir, now I kindly request you to release the books. Caliber and future of an individual. A teacher affects eternity and brings out the
Teacher can change lives with just the right mix of chalk and challenges. In honor of the respected teachers, we would confer awards to those deserving mankind. For this, may I request the dignitaries on dais to do the needful. With this, I invite Shri Aditya Kumar, PGT, currently at Government Higher Secondary School, Nyaping, Kurumkume District. He has joined the Department of Education on 1st May 2007, Government Middle School, Panu, STGT. He has completed 14 years and 2 months of service. He is involved in mobilizing the public as well as students in the backward areas. He is actively associated in the overall development of school. Thank you so much, sir. Shri Ganesh Prasad Sahu, PGT, currently serving at Government High Secondary School, Basar, under Leparada District. He has completed 20 years and 4 months with utmost sincerity. He has served as principal in charge in various schools and has been handling duties of home examination and evaluation center, Basar. He has attended various trainings and has been awarded by District Administration Leparada for his wonderful performance. Thank you so much, sir. Shri Sanjay Kumar, PGT, Government High Secondary School, Namsai. He has joined the Department of Education on 3rd March 1994 at Government High Secondary School, Tawang. In his 27 years of service, he has served at various schools. He has motivated students to participate in various co-curricular activities and has attended National Integration and Peace Growth campaigns. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Shri Ram Ganesh Singh, PGT, Government High Secondary School, Doimukh, Papum Pare. He has joined the department in 1988. He has been serving the department from last 33 years and has engaged in the work of AISSE and AISSCE internal examination of Papum Pare district and also is a scout master. He has also acted as state level resource person. Thank you so much, sir. Shri Makar Sonal, PGT, currently at Government High Secondary School, Miao Changla. He has joined the department in 1996. In his 25 years of service, his achievement and contribution to the society is in diversified field. He is literally in charge of activities like essay competition, quiz, and is NSS program officer. Thank you, sir. Srimati Delhi Rimen, headmistress, currently at Government Girls Residential School, Upia, Papum Pare. She has joined the department in the year of 1980 at Government Primary School, Nirjini. During her 41 years of service, she rendered her service with sincerity and dedication. She is a senior speaker and a renowned Nishi artist. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Shri Kumud Kumar Jha, PGT, at Government High Secondary School, Polo Colony, Itanagar. He has been working since 25 years in different districts of Arunachal Pradesh. He has been learning local dialects of the community to apply in his teaching strategies. Thank you so much, sir. Shri Sanjay Kumar, PGT, currently at Government High Secondary School, Arunodaya, Itanagar. He has joined the Department of Education on 7 July 1995 at Government Primary School, Pania, Palin Circle, Kurumkume. He has served in hard and soft belts of Arunachal Pradesh such as Tawang, etc. He has been given the responsibility of CBSE examination in charge and also worked as advisor CBSE cell. Thank you so much, sir. Shri Marpa Bloke, TGT, currently at Government High Secondary School, Ganga, Itanagar. He has joined on 11th April 2011 at Government High Secondary School, Lutla, Tawang. He has served in different districts of Arunachal Pradesh and was also appointed as instructor for schools in Capital Complex. Thank you so much, sir. Shri Tingoma Miri, TGT, currently
TGT, currently at Dai Training Memorial Government High Secondary School, Pasighat. He has joined the service in 1986 and has been served in remotest place of Arunachal Pradesh such as Mitri, Yanini, Upper Dibang Valley and many other districts. He has frequently visited a village to create awareness among parents and students. Thank you so much, sir. Shri Sunil Kumar Singh, TGT, ITJ Government High Secondary School, Pasighat, East Siam. He has joined in the year 1995 in Sangram, Pune. He has performed the duties of headmaster in charge and has solved the problem of land encroachment with the help of public and Gaudas. Thank you so much, sir. Shri Bhaskar Pandey, TGT, currently at Government High Secondary School, Leel, Pune. He has joined the Department of Education on 30 July 1997 at Government Middle School, Niyomi. He has completed 24 years of service and has served at remote places of Arunachal Pradesh. Thank you so much, sir. Shri Surendra Thakur, TGT, currently at Government Secondary School, Changlang, Lohit. He has joined the department on 9th December 1985 and was posted at Government Middle School, Sangram. He has served as headmaster in charge in various schools and has received Best Performing School Award for Lohit District, Government Secondary School, Changlang. His 35 years of service is noteworthy. Thank you so much, sir. Shri Jai Prakash Rai, TGT, currently at Government Secondary School, Mainu, Lower Dibang Valley. He has joined on 28 October 1985 in Etabe in Dibang Valley district. He was posted in primary school, Nukmo, middle school, Iduli. He is sincere and punctual and has attended training programs and also acted as resource person. Thank you so much, sir. Shri Viswajit Dev, currently at Dani Kunia Government High Secondary School, 0, Lower Subansiri. He has joined in the year 1995 and has at Government High Secondary School, Palin, Kanadadi district. Thank you so much, sir. Shri Roman Moran, TGT, currently at Government High Secondary School, Mahadevpur, Namsai. He is sincere in taking classes and punctual and conducts various co-curricular activities. Thank you so much, sir. Shri Takar Kotim Musu, TGT, currently at Government High Secondary School, Mechuka, Shiomi district. He has joined on 4th October 2000 at Government Secondary School, Monigam. Has represented Northeastern Region Directorate NCC at Republic Day Contingent in New Delhi. He was recognized for his excellent performance by President of India. Thank you so much, sir. Shri Komal Singh Yadav, TGT, currently at Government Town Secondary School, Khonsa, Tira. He has joined the department on 23rd November 1992 and has participated in various trainings conducted by CBSE. He is also at CBSE in charge and also acted as Hindi resource person in service trainings. Thank you so much, sir. Shri Deepak Mukhia, TGT, currently at Government Secondary School, Bhalupom, West Kamen. Has joined on 1990 in Government Primary School, Dikshit under Nafra Circle, which is the remotest part of Arunachal Pradesh, and was also felicitated by Union Minister of Human Resource and Development, Government of India, Srimati Smriti Zubin Irani on 2015. Thank you so much, sir. Shri Tarakeshwar Pandey, TGT, currently at Government Secondary School, Darka, West Siam. Has joined on 1991 and was posted at Government Lower Primary School, Sari Nikal, one of the interior schools of West Siam. He underwent several trainings and his innovative ideas were beneficial for students. Thank you so much, sir. Shri Kumtum Atter, TGT and Scout Master, currently at Government High Secondary School, Alo, West Siam. He has joined on 1990 and was posted at various primary and upper primary schools of West Siam. His dedication towards the welfare of students and community is noteworthy. Thank you so much, sir. Shri Partha Pratim Dhar, primary teacher, currently at Government Secondary School, Korunu, Lower Dibang Valley. He has long years of teaching in several parts of Arunachal Pradesh and is also a Scout Master. He was awarded BSG COVID Warrior Northeastern Region from BSG New Delhi. Thank you so much, sir. Shri Tadu Oko, primary teacher, currently at Government Secondary School, Hilltop, Apuli. He has joined the department in 2012. He has been rendering dedicated service since joining. He participates in various welfare activities such as blood donation camps, co-curricular activities, etc. Thank you, sir. Shri Ravi Kino, primary teacher, currently at Government Upper Primary School, Rilo, Pakistan. He has joined the department in the year 1993. Since then, he has served in various schools of Arunachal Pradesh. He does social services like tree plantation, clean environment social group in Pakistan.
2008 at Government Primary School Singpir under Shri Yomi district. Since joining, he is performing his duties with utmost dedication and sincerity. Thank you so much, sir. Srimati Pasam Grima Narsam, primary teacher, currently at DDSC Shri Yomi. She has joined the department on 2006 and was posted at Government Secondary School Mechuka. She is the first lady who has completed her post-graduation from Shri Yomi district. Since her joining, she has performing her duties with utmost sincerity, and she is the first recognized lady singer of Naynam community. Thank you so much, ma'am. Shri Subrata Chaudhary, primary teacher, currently at Government Upper Primary School, Namsam Tirap. He has joined on 6th August 2008. He is very innovative and deals with admission, exam in charge, and many more. He has participated in various workshops, in-service trainings at district level by Diet Khonsa. Shri Ramrat Singh Yadav, primary teacher, currently at Government Secondary School CP, Upper Subansiri. He has joined the department on 1995 and has supported education for underprivileged and reached out to local communities for higher enrollments. His method of teaching is very effective. Thank you so much, sir. Shri Dai Mukhi, primary teacher, currently at Government Residential School CB, Upper Subansiri. He has joined the department on 1969. During his service period, he has been maintaining cordial relations with fellow teachers, students, and parents. He is loved and respected by everyone. Thank you so much, sir. Shri Linya Boje, primary teacher, currently at Government Upper Primary School, Paya, West Siam. He has joined on 24th March 2008. He is very well organized and coordinates various people efficiently. He looks after midday meal scheme at his school. Thank you so much, sir. Shri Arvind Kumar Thakur, primary teacher, currently at Government Primary School, Mopit, Siam. He has joined the duty on 2000 at Government Primary School, Yexi. He worked tirelessly and rigorously and made excellent results. He has attended various in-service training and has shaped the destiny of students. Thank you so much, sir. Shri Anandra Gogoi, TGT ISSE, currently at Government Secondary School, Rangali Bill, Namsai. He is sincere in performing his duty. He was awarded as District Excellence Certificate by Government of Arunachal Pradesh. Thank you so much, sir. Shri Santosh Bharadwaj, TGT ISSE, currently at Government Secondary School, Chimpu, Itanagar. He has joined in the year 2014. He is very capable, sincere, and disciplined. Besides his teaching, he is engaged in official work, co-curricular activities. Thank you so much, sir. Shri Rajkumar Thakur, primary teacher, ISSC, currently at Government High Secondary School, Ani, near Dibang Valley. He has joined the department in 2006 at Government Middle School, Mipi, Dibang Valley. He was also appointed as exam in charge and of internal exams by CBSE. Thank you so much, sir. Shri Bablu Kumar Pandey, primary teacher, ISSC, currently at DDSC, Rupia. He has joined the Department of Education on 2000. He has served in various schools of Arunachal Pradesh. Thank you so much, sir. Shri Dorji Nima, primary teacher, ISSC, currently at Government Upper Primary School, Lupo, Tawang. He has joined the department on 1st June 2007 at Government Primary School, Taksam, under such hard and challenging conditions. Thank you so much, sir. Shri Tamir Pakso, primary teacher, ISSC, currently at Government Primary School, Fishery Colony, Damborijo, Upper Subansiri. He has joined the department on 15 October 2008. He has supported the education of underprivileged and reached out to local communities for higher enrollment. Thank you so much, sir. Shri Sunil Kumar Singh, physical education teacher, currently at IGJ Government Higher Secondary School, Pasika. He has joined the department on 11 January 1993 and was also awarded and has also produced 7 Rashtrapati Scouts and 57 Governor Awardee Scouts. Thank you so much, sir. Shri Pramod Kumar Gupta, principal, currently at Vivekananda Kendra Vidyalaya, Gawa, Kurumkume. He has joined BTV Vesang Sepa on 16 July 2012 and has served at Dado, Karadadi district and many more.
के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनमोहन जी, कमिश्नर एजुकेशन मिस निहारिका राय IAS, Commissioner to Honorable Chief Minister, Special Secretaries, Adult Secretary, Director of School Education, Director of Elementary Education, all CBOs, President, all Teachers Association, General Secretary, all Teachers Association, and all teachers, awardees, my dear teachers and media friends. आज इस हर साल हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। आज एक ही दिन हमारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि थी और एक महान विद्वान और एक बहुत अच्छे टीचर थे और इस साथ ही साथ हमारे देश की प्रथम उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति भी बने। आज उन्हीं की यादगार में शिक्षक को आज सम्मान किया जाता है। हम आज सारे भारत में हर कोने कोने में जो भी शिक्षक है उसको हम सम्मान देने के लिए आज हर लोग अपने विद्यार्थी पब्लिक जितने भी लोग हैं उनको सम्मान देने के लिए आज के दिन में जुट जाते हैं। आज संसार में जो कुछ भी होता है गुरु ही सब कुछ हमारा है। गुरु के बिना हमारे कुछ भी नहीं होता। अगर आप गुरु हैं तो शिष्य है और ये शिष्य कभी गुरु बन जाता है। आज इसलिए आज हम सब गुरु को हम सम्मान और रिस्पेक्ट देने के लिए, इसलिए गुरु को कहा गया है कि अभी शुरुआत में बेटी चले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हर भगवान के रूप में गुरु को देखा गया। गुरु ब्रह्मा के रूप में है, गुरु विष्णु के रूप में है, गुरु देवों के देव के रूप में है और इसलिए गुरु को ही आज सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आज हमारी अरुणाचल में आपकी बदौलत से, आप शिक्षक की बदौलत से आज हमारी पूरे भारत में कहा जाए तो हमारी शिक्षा बहुत लेट स्तर पर है। बाकी प्रदेशों से तुलना किया जाए तो हमारा यहाँ फर्स्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 1911 में शुरू हुआ और बाकी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है और 1950 और 62 के बाद ही हमारी शिक्षा प्रारंभ हुआ। लेकिन आज हमारा शिक्षा इतना आगे बढ़ गया कि हम राष्ट्र स्तर पर हम अपने शिक्षा को बराबर की तोड़ सकते हैं। आज मैं कहूँगा कि जन्म देने वाला पेरेंट्स तो अपने हर बच्चों के होता है, लेकिन हमारे सबसे सेकंड पेरेंट्स जो बच्चों को, जो हमारे आने वाले भारत की जो नौजवान है उसकी असली पेरेंट्स तो आप टीचर्स लोग, आप गुरु लोग हैं। आप अगर गुरु के हाथ में सही शिक्षा स्टूडेंट अगर सही गुरु का हाथ पड़ा तो बच्चे हमारे देश के कल के नेता बनेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। आज इसी तरह हमारी एनडीए सरकार जो 1968 में पहली बार हमारी शिक्षा नीति लागू हुआ, उसके बाद हमारे 1986 में दूसरा शिक्षा नीति लागू हुआ और आज 2020 में हमारी शिक्षा नीति हमारी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लाया, इस नीति को देखा जाए तो ये हमारी बहुत सबसे अच्छी नीति कहा जाए मैं कह सकता हूँ कि इस नीति को हमारे अरुणाचल में भी लागू कर दिया है। 29 जुलाई 2020 को ये हमारी शिक्षा नीति को भारत सरकार ने लागू किया और उसी को साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने भी हमें अरुणाचल में भी लागू करने के आदेश दिया गया है। आज हमारी 29 जुलाई 2020 में शिक्षा नीति की आज पूरा 1 वर्ष हुआ
इस वर्ष में हमने बहुत कुछ किया, बहुत से वेबिनार किया गया, एक्सपर्ट को लोगों को बुलाया गया, टास्क फोर्स बनाया गया है। और हमारे सबसे आज की रूप में देखा जाए तो हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शिक्षा नीति के बारे में प्रथम ही बहुत अव्वल नंबर 1 में है, जो हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी हमें मिनिस्ट्री में कहते हैं कि अरुणाचल एक ऐसे प्रांत है जिसकी हर रिपोर्ट, हर चीज़ टाइम नहीं मिलता है। आज आप सबके माध्यम से हमारे स्पेशलिस्ट शिक्षकों को कहना चाहूँगा, ये जो शिक्षा नीति 2020 ये बच्चों के साथ साथ आपकी शिक्षकों को भी बहुत सा आपको कठिनाई करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहले तो हमारी जितने भी नीतियाँ थी टीचर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया, लेकिन इस शिक्षा नीति की 2020 में शिक्षा को आपको भी पढ़ाई करना पड़ेगा, आपका भी इवोल्यूशन होगा, आपको भी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। इसलिए आप अपने स्तर पर आपको परफॉर्मेंस करके आपको अपग्रेड करने के लिए आपको इसमें चांस दिया गया है। जो टीचर्स अपनी उस कार्यवाही में नहीं कर पाएगा, आप पीछे रह जाओगे। जो टीचर अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, इवोल्यूशन में सही होगा, उनका परफॉर्मेंस और उनका प्रमोशन भी उसी प्रकार होगा। और इस शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात है कि हमारी सरकारी स्कूल में कभी प्री प्राइमरी स्कूल नहीं था, जिसके वजह से आप सबको शिक्षक को बहुत कठिनाई मिली है कि बच्चे डायरेक्ट क्लास 1 में एडमिशन ले लेते हैं। लेने के बाद उनको ओ आर को सीखने के लिए ABCD सीखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि क्लास 1 से डायरेक्ट आप बड़ी बड़ी किताबें दे दिए जाते हैं। आज इस शिक्षा नीति में आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECC के रूप में 3 साल से लेकर 6 साल तक प्री प्राइमरी एजुकेशन जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में लागू होगा। इस बार हम बहुत आभारी हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी 300 स्कूल को चालू करने के लिए हमें धनराशि दिया गया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री जी ने और भी हमारे स्कूल में और भी ECC के रूप में और भी शुरू होगा। इसलिए आप सबको इस जो शिक्षा नीति की 2020 को आप सबको बढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या क्या नीतियाँ मिली है, मैंने पहले भी कहा कि हम जितना भी वेबिनार हुआ है और जितना भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम सब टीचर्स को, सब प्रोफेसर को और HOD को और हमारे जितने भी ये रूल मेकर है, इवन जितने भी ऑनरेबल MLA मिनिस्टर को हमने सभी को दिया कि ताकि फीडबैक मिले, और इसकी हमारी काफ़ी अच्छी फीडबैक मिला है। और इसी के साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल 2021 और 22 को ये जो एजुकेशन डिक्लेयर किया है, तो मैं इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से मैं तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडे जी से और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री चोना मैन से बहुत आभारी हूँ कि इस बार हमें एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। कभी भी एजुकेशन को जितना आज इम्पोर्टेंस हमारे पेमा खांडे साहब दे रहा है, पहले कभी नहीं दिया। आज की नीति में देखा जाए तो आज हमारी स्टेट की जो GDP है उसमें कम से कम बाकी स्टेटों में 5% 6% है, लेकिन हमारी स्टेट में GDP की जो रकम देखा जाए तो आज हमारी 9% है, सबसे हाई है। और इस ईयर एजुकेशन के तहत मिशन शिक्षा की गोद में लेके आया है। एक मिशन डायरेक्टर भी हमने बनाए हैं, उनके आने में बहुत अवसर हैं। वो मिशन शिक्षा की नीति को कैसे आगे ले चलेंगे। इस मिशन शिक्षा के रूप में इस बार इम्पोर्टेंस दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट, और अंत में हमारी टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी। ये मुद्दा 5 मुद्दा हम इस मिशन शिक्षा में लाया गया है। मुझे आप सबसे रूबरू करते हुए मैं 2 सालों में देखा कि हमारे शिक्षक बहुत कठिनाई में हैं। जो दूर दराज में जो टीचर का पोस्टिंग होता है वहाँ में स्कूल बिल्डिंग ठीक नहीं है, रहने की क्वार्टर नहीं है। उसे मद्देनजर रखते हुए हमारी पेमा खांडे सरकार ने इस बार एजुकेशन को, शिक्षा विभाग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसके मद्देनजर रखते हुए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, जो स्कूल की बिल्डिंग है, आपकी टीचर्स के क्वार्टर से
इसको इस बार इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और आने वाले 5-6 सालों में हमारे साथ में काफ़ी सुधार आना चाहिए। और हमारी सबसे दिक्कत हमने देखा इन 2 सालों में, आप सबको ट्रांसफर पोस्टिंग करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि सब टीचर किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई ना कोई पॉलिटिशियन से जुड़ा होता है। जब भी टीचर का ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर निकलता है, अगले दिन ही ऑर्डर निकल से पहले अगले दिन ही हमारे पास ऑनरेबल के नोट आ जाते हैं, जिसके तहत से हम ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी सही सलामत से लागू नहीं करता है। जो टीचर आउटपोस्ट में इंटरव्यू में बरसों से रहा है वो बरसों में वहाँ रह रहा है, क्योंकि उसको कभी हमारे आत्मनिर्भर देने के मौका नहीं मिला। लेकिन ये जो हमारे जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, हमारे तुरंत सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, चंद महीनों के बाद हमारा सॉफ्टवेयर होगा, और जब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाके भी पैदा नहीं होगा, मुझे पॉलिसी भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको अपने आप को उसमें डाटा में डालना पड़ेगा, आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, आप 5 स्कूल कहाँ जाना चाहिए। आप हार्ड एरिया में है तो मिडिल एरिया में जाना चाहता है तो मिडिल एरिया वाले, लोअर बेल्ट में सॉफ्ट एरिया में जाना चाहते, उसी पर आपको अपने से ऑनलाइन में डालना पड़ेगा, ऑनलाइन में आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, 5 ऑप्शन देना पड़ेगा, उसमें आपको सॉफ्टवेयर आपको बताएगा आप वो 5 में से कहाँ जाएगा। इसलिए उसमें ना हम जब मंत्री कुछ कर पाएंगे, ना हमारे कमिश्नर कुछ कर पाएंगे, या डायरेक्टर कुछ पाएंगे, या हमारे लोग जितने भी हमारे ऑनरेबल एमएलए लोग कुछ कर पाएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए, आने वाले समय में आपकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा पॉलिसी बिल्कुल आप सबके किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से होगा। और आप सबकी भलाई के लिए हमने जब से ये हमारे पेमा सरकार जी ने हमें शिक्षा विभाग दिया, हमने डीपीसी डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिए टाइम बाउंड करने के लिए हमने शुरुआत किया। सरकार तो कहता है कि हर 6 महीने में करने के लिए, लेकिन मैंने देखा इस विभाग में कम से कम वर्षों से डीपीसी हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने हर 4 महीने में, हर 6 महीने में डीपीसी होने के लिए हमने निर्देश दिया गया है। और इन 2 सालों में कम से कम 1600 लोगों को डीपीसी करके आपको प्रमोशन मिला है। पीओन से लेकर आपके प्रोफेसर तक का सभी विभाग में हमने डीपीसी टाइम में बैठा के सब तरह का हमने दिया। अभी भी हमको डीपीसी में बहुत पोस्ट प्रमोशन देना बाकी है, लेकिन इसमें आप सबकी सहयोग चाहिए। वो सहयोग क्या है कि आप लोग टीचर लोग कभी टाइम में एशियर जमा नहीं करते हैं, आपको टाइम भी जमा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आजकल ये एक नीति लगा दिया, आप एशियर तभी दे पाएंगे जब आप एनओसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, क्योंकि आज के हालत में यही है कि हमारे टीचर्स, हमारे अफसर लोग अपने जमीन को, अपने स्कूल कंपाउंड में एनक्रोच करते हैं, जिसके वजह से हम अपने स्कूल को जमीन को खोना पड़ता है। कल एक अंशु से बात करते हुए देखा, ईटानगर में सर एक प्राइमरी स्कूल गायब हो गया और जमीन कौन देके पता ही नहीं चला। तो इसी प्रकार मतलब टीचर भी कंप्लेन नहीं किया, डीडीएससी भी कंप्लेन नहीं किया। कल अंशु ने मुझे बताया कि ये स्कूल कहाँ गया है, मुझे बताइए, 4 मिनट पीछे, और स्कूल को किसी ने हड़प लिया, कोई रिपोर्ट दिया ही नहीं। क्योंकि ये स्कूल, हम पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे लेकिन हमारा जमीन तो कभी नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम जमीन को, आपका स्कूल कहाँ भी है अभी रखवाला है। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि इस एनओसी जब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी को लेना पड़ेगा, आप अगर लैंड एनक्रोचमेंट किया है तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा, एनओसी नहीं मिलेगा तो आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा, विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो आपका डीपीसी में आपका नाम नहीं आएगा। तब हमें मत बोले कि मेरा नाम क्यों नहीं है। ऐसे अभी भी बहुत से लोगों को सीनियरिटी में है लेकिन डीपीसी पैनल में आपका नहीं नाम आ पाता है। इसलिए आप कहीं में भी आपने एनक्रोच किया है, कुछ किया है, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। और मैं इस साल बहुत खुश हूँ कि हमारे क्लास 10 और 12 की रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। ये मैं सिर्फ गुरुजी को देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोविड को भी देता हूँ कोविड को भी देता हूँ, क्योंकि इस साल सही सलामत से एग्जाम नहीं हुआ तो इस साल के जो रिजल्ट जो आया क्लास 10 की, जो हमारे टोटल 17,437 17,436 बच्चे एडमिशन लिए हैं, और उसमें से हमें इस बार भी क्लास 10 में लड़कियां ज़्यादा रही, 9,244 लड़कियां और 8,192, और पास परसेंटेज ओवरऑल में 65.55% लास्ट ईयर से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साल में क्लास 10 में हमें देखा गया कि लड़कियों ने सर अच्छा किया है,
लड़कियों ने 68.5% पास किया है और लड़के बच्चे बॉयज 62.17% हुआ है। उसी प्रकार हमारे इस साल क्लास 12 में जो रिजल्ट कहा जाए तो टोटल हमारे बच्चे हैं जो एनरोल है 9,727 और पास परसेंटेज है 91.73। इसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई और जोरदार करेंगे। ये हमारे कोविड के वजह से और आप लोग की बदौलत से इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है और ये हमारे इस साल की इसमें और बॉयज 89.5% पास हुआ है। इसलिए मैं आप जितना भी गुरुजन हैं आप सबके बहुत बहुत बधाई धन्यवाद कि हमारे इस साल की क्लास 10 और 12 रिजल्ट अच्छा रहा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे आने वाले समय में भी ये अच्छा रहेगा। और 2008 से बहुत सालों से हमारे इस साल ये तार में शुरू हो रहा था, तार में किताब नहीं कर पाया। 2008 से लगते लगते आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे 8 ट्राइब्स की जो तार की किताब को इनॉग्रेट कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज है हमारे अरुणाचल के संदर्भ में। और यही नहीं, हमारी शिक्षा नीति की 2020 की भी कहते हैं कि हम अपनी प्री प्राइमरी एजुकेशन जो मातृभाषा में हमको सिखाना है, क्योंकि 3 साल से लेकर 6 साल में हमारे बच्चों की ब्रेन ग्रोथ जो होता है 85 से लेकर 95% तक हो जाता है। उस दौरान अगर अपनी मातृभाषा अपनी पढ़ाई को अगर बच्चों को सिखाया जाए वो बच्चा जिंदगी में कभी नहीं मरेगा जब मरते तब तक। इसलिए इस मातृभाषा को अपने ट्राइबल थर्ड लैंग्वेज को उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसमें अब जो हमारे इसी में भी प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा उसमें भी हम अपनी भाषा में आदि है तो आदि, मनपा है तो मनपा, निशी है तो निशी, कम से कम बच्चों को खेल कूद अपनी कहानियाँ अपने बोली कलर्स ये सब सिखाने के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं साथ में इसके लिए मैं जितने भी आए हुए सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोग की बदौलत से मेरे डायरेक्टर तो SCRT ने ये आज किताब को किया है। और मैं इसके लिए तहे दिल से हमारे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले हमारे जितने भी किताब है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट हमारे गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश ही करेंगे, हम प्राइवेट को नहीं देंगे। और एक हमने एक एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल्स और मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। उसमें www.arunachal.gov.in में आप देखिए, उसमें आप जब भी लॉग इन करेंगे हमारी शिक्षा के बारे में मिलेगा। उसमें आपकी नो योर टीचर्स, रजिस्टर योर व्यूज, रजिस्टर योर सजेशंस, उसमें आप सजेशन भी दे सकता है, आप आपका ग्रेविजेंस भी डाल सकता है। उस पोर्टल में जाके आप कोई भी स्कूल अरुणाचल के प्राइमरी स्कूल से लेकर हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल कोई भी स्कूल को उसमें नाम डालिए, कोई भी टीचर का नाम डालिए, वहाँ आपके हर टीचर का फोटोग्राफ, क्या डिग्री है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, कौन सा साल से वहाँ टीचर हो रहा है, वो पूरा आपको डाटा मिलेगा। अगर उस डाटा को मिलने के बाद भी आप अगर कोई अगर स्कूल में जाता है और टीचर नहीं मिलता है, आप उसी मोबाइल ऐप से भी हमें ग्रीवेंसेस डाल सकता है ताकि हमारे यहाँ कंट्रोल रूम से हम इसको एक्शन ले सकें। ये एक हमारी नई शुरुआत है। और साथ ही साथ हम जितना भी गोस्ट टीचर जो हमारे प्रॉक्सी टीचर, हमारे बहुत सा कहानी होता है कि हम ईटानगर में घूम रहे हैं, टीचर और दूसरा टीचर देखता है, फोटोग्राफ अलग होगा, टीचर पढ़ाने वाला अलग होगा। ये कम से कम प्रॉक्सी टीचर और गोस्ट टीचर खत्म हो जाएगा। और मैं सर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अरुणाचल टीचर एसोसिएशन और टीचर लोगों ने एक मुद्दा आपसे रिक्वेस्ट करने के कहा कि MACP की उनको जितना भी अरुणाचल में गवर्नमेंट में नौकरियां करते हैं सभी को MACP दिया गया है, लेकिन हमारे टीचर को नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आपके आज इस अच्छे दिन में जो टीचर्स डे में टीचर को कुछ गिफ्ट देने से अच्छा है, इसलिए मैं आपको कैबिनेट में लेके सरकार उसको एग्जामिन करके उसको ऑर्डर दे देने से बहुत अच्छा होगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो हमारे शिक्षा विभाग में तरह तरह की कंप्लेनें आते रहते हैं। हमारे आंसू ने लास्ट बार हमें 14 चार्टर ऑफ डिमांड दिया, जितने भी 14 चार्टर ऑफ डिमांड दिए सर, हमने एक भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नहीं किया है। जितने भी 14 की 14 डिमांड है हमने फुलफिल किया हुआ है, कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं छोड़ा है। जो चीज़ हम कर रहे हैं उसी को उन्होंने बताया, और एक उन्होंने बताया कि हमें
ये जो इंटेक कैपेसिटी पे लेकर जो गवर्नमेंट निरंतर गवर्नमेंट कॉलेज में इंटेक कैपेसिटी वहाँ और बच्चा भराना है। सर आपके माध्यम से मैं यहाँ लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे 19 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें इंटेक कैपेसिटी है 9020 और 2 तारीख तक जो हमें बच्चा एडमिशन मिला 8200 समथिंग एडमिशन है। अभी हमारे 900 सीट खाली पड़ा है। अभी भी हमको ऑलमोस्ट 1000 की अभी भी वैकेंसी है, मतलब बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जहाँ में बच्चे एडमिशन मांगते हैं वो है, एक तो है जरानगर गवर्नमेंट कॉलेज, एक तो है JNC पासीघाट, एक तो है आपके तेजू। ये 3 कॉलेजेस में सब बच्चे एडमिशन लेना चाहता है, ये इसमें ओवर कर देते हैं। अदरवाइज हमारे तवांग गवर्नमेंट कॉलेज, बमदला गवर्नमेंट कॉलेज, इसकामी गवर्नमेंट कॉलेज, आपके याचुले गवर्नमेंट कॉलेज पालिन, गवर्नमेंट कॉलेज यापिन, गवर्नमेंट कॉलेज दापरी, जो जितने भी कॉलेजेस है रंगफरा, देवमाली, रोइंग, सब में अभी भी सीट खाली पड़ा है। तो हमने कल आप सबको वही कहा कि क्यों सिर्फ हम ईटानगर में सिर्फ हम आप एडमिशन ढूंढते हैं, जो कैचमेंट एरिया के हिसाब से हमें करने दीजिए, क्योंकि उसमें अपना अपना कैचमेंट, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कॉलेज को अपने डोर स्टेप लेके गया, वो डोर स्टेप में बच्चे एडमिशन नहीं लेके सिर्फ ईटानगर में और पासीघाट में ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पूरा खाली पड़ा है। हम फैकल्टी मेंबर दे रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट ईटानगर जैसे या पासीघाट जैसे नहीं, ईटानगर और पासीघाट सबसे पुराने कॉलेज है, बाकी कॉलेज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई खराब नहीं है, फैकल्टी मेंबर भी हमारे हैं। ये आंसू की डिमांड सर आपके नॉलेज में हम लेके आ रहे हैं। और मैं आज जितने भी हमारे टीचर्स अवार्ड मिले हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अंत में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, वी वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, strength of the mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand one's own feet. इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा में यही बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words. You have rightly said that today everyone is somebody due to our teachers. Today Helen Keller would not be herself without her teacher, Miss Sullivan. Swami Vivekananda would not have been one without his teacher, Sri Ramakrishna Paramhans. Thank you so much, sir. You have told us a great lesson which will definitely change the philosophy of life. Thank you so much, sir. Now may I request Honorable Chief Guest, who neither cares about day and night, who is ready to burn the midnight oil when it comes to quality education, the young and energetic Shri Pema Khandu ji, Honorable Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh, to address us with his valuable words. Please, sir. भारत रत्न एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की इस जन्म एनिवर्सरी में और साथ साथ टीचर्स डे के शुभ ओकेजन पर मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और अरुणाचल प्रदेश का पूरा जनता की ओर से आप सभी टीचर्स जो दिन रात मेहनत करके पूरे अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूल में जो पढ़ाते हैं, आप सबको बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं और मुबारक होता है। इस ओकेजन को ब्लेस करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हमारा कलीग राज्य के शिक्षा मंत्री श्री तपक तेदिर जी, एजुकेशन कमिश्नर निहारिका राय मैडम और हमारे दोनों स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, यहाँ उपस्थित एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी डायरेक्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स और हमारे बीच उपस्थित हमारे CBOs के रिप्रेजेंटेटिव और ख़ास करके आप जितने भी जो टीचर्स आज इस यहाँ स्टेट बैंकिंग हॉल में जो आए हैं, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। जैसे अभी आज टीचर्स डे का ओकेजन है और हम लोग ने अपना शिक्षा मंत्री का स्पीच भी सुना, उन्होंने बहुत ही एलोरेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बताया। तो मैं इन सब टॉपिक पे आने से पहले मैं सबसे पहले अपनी ओर से हमारा जो आज के अचीवर्स है टीचर्स, जो 40 अचीवर्स है, आप सभी को मेरे ओर से भी बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। एजुकेशन का जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश का जो संबंध है, हमारा तबेदिर जी ने ठीक ही बोला कि वी आर अ वेरी लेट स्टार्टर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। सिंस इंडिपेंडेंस
जब आज़ादी हुआ तो हमको जो कहा गया कि वी हैव स्टार्टेड विद 3 प्राइमरी स्कूल्स एट दैट टाइम। अभी आज हम लोगों का आज़ादी का 75 ईयर्स में हम लोग एंट्री हो चुका है। तो विद इन 75 ईयर्स अभी हम लोगों का स्कूल का तादाद भी काफ़ी बढ़ गया है। अभी मैं कमिश्नर मैडम से बात कर रहा था तो उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि वी हैव रफली अराउंड 4000 स्कूल्स, वी हैव टच्ड अराउंड 4000 स्कूल्स। 3 प्राइमरी से लेते अभी 4000 स्कूल्स तक हम लोग ने पहुँच चुका है। सो ओवर द ईयर्स एजुकेशन में भी काफ़ी रिफॉर्म आया। अभी यहाँ उपस्थित बहुत सारा सीनियर टीचर्स लोग भी यहाँ पे बैठा हुआ है जो उस ज़माने से सर्व कर रहा होगा। आप लोग विभिन्न क्षेत्र में जहाँ पे रोड नहीं था वहाँ भी आप लोग ने सर्विस प्रोवाइड किया। तो अरुणाचल का हिस्ट्री किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ ये आप लोग से अच्छा और कौन जान सकता है। तो अरुणाचल में भी जो एजुकेशन का डेवलपमेंट अपने आप में भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ है और उतना ही मैं तो सीधा बोलता हूँ कि शायद एजुकेशन लाइन में बहुत चीज़ खराब भी वहाँ पे हुआ है। और आज अच्छा एक ओकेजन है क्योंकि यहाँ पे पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट का टॉप टू बॉटम सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित है। तो मेरा आज जो डिलीब्रेशन होगा थोड़ा बहुत अपना एजुकेशन को लेके जो कंसर्न है उसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग को एड्रेस करना चाहिए, इसको मौका का फायदा उठाते हुए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी हम रखना चाहेगा। हम लोगों को इनफैक्ट सबसे पहले तो मैं अपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। लास्ट ईयर उन्होंने जो एजुकेशन का चिंता करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने जो लॉन्च किया है, इट वॉज द बिगेस्ट रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द एजुकेशन सेक्टर। और इस सेक्टर में करीबन 10 साल का टाइमलाइन दिया हुआ है कि हर एक क्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जैसे वहाँ दिल्ली में अनाउंसमेंट हुआ, अपने राज्य में भी हम लोग ने भी इसका भी अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग भी यहाँ पे लागू करना चाहिए एंड फुल फ्लेजेडली बाय 2030 हम लोग टेक ऑफ करना चाहिए। सो उसके अंदर में राज्य में 2 प्रकार के टास्क फोर्स भी हम लोग ने बनाया जिसमें जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स लोगों का भी कमेटी में नाम है और बहुत दफ़ा मीटिंग भी हो चुका है इसको लेते हुए। तो पहला काफ़ी बार मीटिंग होने के बाद और अपना स्टेट का जो एजुकेशन का जो चैलेंजेस को देखते हुए उसको भी हम लोग किस प्रकार से एड्रेस किया जाए, तो उसको एड्रेस करने के लिए भी हम लोग ने एक तो एजुकेशन को हम लोग एक मिशन के तौर पे लेके आया, मिशन शिक्षा। तो उसका अंतर्गत में अपना स्टेट में किस प्रकार का जो गैप है उसको कैसे हम लोग फुलफिल किया जाए, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आज डिग्रेड होकर बैठा है उसको फिर आगे कैसे हम बढ़ाया जाए। तो ये सारा बहुत कुछ चैलेंजेस है। इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी जो CBOs है और खास करके जो पेरेंट्स है सबका कंट्रीब्यूशन और सबका योगदान इसमें हम लोगों को देना होगा। देखिए ओवर द इयर्स मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अरुणाचल जो है डेमोक्रेसी के नाम में अलग दिशा में ये चलना शुरू हो गया था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वे बैक इन 1972 जो हम लोगों का यूनियन टेरिटरी में जब यहाँ पे घोषणा हुआ था, 72 से लेकर 1987 दैट वाज द गोल्डन पीरियड फॉर अरुणाचल। इनफैक्ट वहाँ पे उस वक्त में हमारे पास केवल सिर्फ 5 ही जिले हुआ करते था एंड इट वाज परफेक्टली मैनेज्ड। स्कूल्स भी भले ही कम था लेकिन एकदम बहुत एक अच्छा स्कूल था उस वक्त में। अब आज देखिए स्कूल तो मैंने जो पहले कहा कि आज 3 स्कूल्स के लेके आज 4000 स्कूल नंबर्स में तो पहुंच गए और टीचर्स भी अभी हजारों टीचर्स अभी रिक्रूटमेंट भी हो गया। तो भी लोग बोलते हैं कि हमारा टीचर्स शॉर्टेज है, सब्जेक्ट टीचर्स शॉर्टेज है, फलाना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो देखा जाए तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मगर ये सब प्रॉब्लम जो है पैरेलली होते जा रहे हैं। तो एजुकेशन इज अ वेरी बिग कंसर्न और इसका चिंता करते हुए सरकार ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया। हमारा तवादेर साहब ने भी जो कहा कि 2021 जो है ईयर ऑफ एजुकेशन हम लोग डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर कर भी चुका है। डिस्पाइट ऑल दोस चैलेंजेस पिछले लगभग 2 साल से हम लोग इस कोविड पेंडेमिक से उबर भी नहीं पाया है, तभी भी इस चैलेंज को हम लोग सोचा है कि जरूर एजुकेशन में हम लोगों को करना, इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म्स हम लोगों को लेके आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो बच्चे हमारे जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में जो है, वही हमारा इस राज्य का और इस देश का फ्यूचर लोग है। तो उसका अच्छा से नर्चर करना, उसको सही जगह में दिशा दिखाना, ये हम सबका जिम्मेदारी बनता है। तो इसीलिए साल ईयर ऑफ एजुकेशन हम लोग ने डेडिकेट किया और मैंने कहा कि हम लोग कन्वर्जेंस के माध्यम से
स्कूल एजुकेशन में हम लोग एजुकेशन सेक्टर में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट हम लोग लेके आएंगे। इसका रिपोर्ट जो है मैं अभी नेक्स्ट जो बजट सेशन जो आएगा फॉर द ईयर 2022-23 वहाँ पे मैं बजट सेशन में रखूँगा कि इस साल हम लोग ने कन्वर्जेंस का माध्यम से एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट की ओर से कितना पैसा हम लोग ने पंप इन किया हुआ है। तो देखिए एजुकेशन जहाँ तक बात है और ये काफ़ी चिंताजनक एक बात है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोगों को कंपेयर किया जाएगा तो हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही कमज़ोर है। आप पूरा देश का तो आप लोग छोड़ ही दीजिए। अभी रिसेंटली जो हमारा नीति आयोग ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक गोल्स का एक तो रिपोर्ट जारी किया जिसमें से अरुणाचल कुछ क्षेत्र में अच्छा है और बाकी क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर है। तो इन सब जो जहाँ पे हम लोगों का वीकनेस पॉइंट है उसको हम लोग किस प्रकार से उसको ठीक किया जाए। तो टास्क फोर्स अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लाइन में काम करेंगे और हमारा मिशन शिक्षा जो गठन हुआ है उसको हम लोग अभी इस जो गैप जो महसूस हो रहा है उसको हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रश्न ये होता है और दावाजेते साहब ने भी जो यहाँ पे जिक्र किया कि हम लोग का यहाँ पे एक जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी नहीं होने के कारण से ये काफ़ी सिस्टम पूरा डिलेड हो जाता है। अगर नंबर ऑफ टीचर्स विद स्टूडेंट्स का जो रेशियो देखा जाएगा तो वी आर हैविंग सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स का शॉर्टेज नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन एक दो जगह डिस्ट्रिक्ट्स में कंसंट्रेशन होने का कारण से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तो जाके शॉर्टफॉल हो रहा है। और आप सबको तो पता है कि ये जो गवर्नमेंट है हम लोग एक बहुत तगड़ा एक पॉलिटिकल बिल लेके हम लोग आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को खास करके मैंने कहा कि जो ट्रांसफर पॉलिसी जो है आप लोग अपना मुताबिक बनाइए और इसको लागू कीजिए। तो डिपार्टमेंट पिछले एक साल से अभी प्रयास कर रहा है और लोगों को खास करके टीचर्स लोगों को जस्टिस मिले इसके लिए एक पोर्टल भी वो लोग तैयार कर रहा है। अभी कमिश्नर मैडम ने हमको बताया कि शायद 2 या 3 महीना में वो पोर्टल बन के भी रेडी हो जाएगा। एक बार ये पोर्टल बन के रेडी हो जाने के बाद जहाँ जहाँ ओवर टारगेट है टीचर्स का उसको हम लोग निकालना शुरू करेंगे। और हमने तो क्लियरली कहा कि अपना जितने भी जो कलीग्स है जितने भी हमारा 60 कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए मिनिस्टर जितने भी लोग हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप लोग इंटरवेंशन नहीं करना है। अभी पॉलिटिक्स तो ऐसा होता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूंसी संभालना है और लोगों का प्रेशर तो एमएलए को होता ही है। एमएलए भी नहीं चाहते हुए भी वो लिखना पड़ता है। तो मंत्री जी का वहाँ आता है और कुछ नोट्स हमारा वहाँ भी आता है। तो हमारे वहाँ पे जो आते हैं तो मैं ऑनरेबल लोगों को चाय पिला के खुशी भेज देता हूँ। भेजने के बाद मैं उस नोट को फाड़ के मैं डस्टबिन में फेंक देता हूँ, क्योंकि ये होने वाला चीज़ नहीं है और एमएलए को भी पता है कि ये नहीं होने वाला चीज़ है। तो इस प्रकार से मैं डिपार्टमेंट को क्लियरली कहा हूँ कि अभी आप लोग जल्दी इसका एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे पहला टीचर्स को रेशनलाइजिंग करना आप लोग शुरू कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि बहुत सारा जेन्युइन भी होगा, अभी किसी का हेल्थ प्रॉब्लम में होगा, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम भी होता होगा, लेकिन अभी जो हम लोग जो रिफॉर्म्स जो लेते हैं तो कुछ चीज़ तो हम लोगों को भी अपना एक सहन करना पड़ता है। नहीं तो ये रिफॉर्म्स जो है वो लागू हो नहीं पाएगा, मुश्किलें होगा। कुछ भी जो रिफॉर्म होता है बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल में आपको अगर दूंगा तो लास्ट फ्यू ईयर्स बैक मैंने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो यहाँ पे गठन किया था। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अभी भी सबसे बड़ा रिफॉर्म्स है अरुणाचल का पॉलिटिकल हिस्ट्री में। पहले क्या होता था कि इलेक्शन का टाइम में आप सबको पता है जो भी पॉलिटिकल कोई भी एक्सवाइजेड पॉलिटिकल पार्टीज का लोग जो अपने कैंपेन में जाता है तो वहाँ पे क्लियर कट निगोशिएशंस होता था कि हमारा परिवार में इतना सारा वोटर्स है और हमको इतना नौकरी आपको वादा करना होगा, आपको प्रॉमिस करना होगा। तो अकॉर्डिंगली सिस्टम ही ऐसा था, पहले से सिस्टम ऐसे चल के आया। तो अकॉर्डिंगली अभी इतना मतलब हम लोग गलत ट्रैक में चला गया, नौकरी भी सब इस प्रकार से होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा कि ये सिस्टम बड़ा ही खराब है और अरुणाचल का भविष्य के लिए ये बहुत डेंजर है। तो विद पॉलिटिकल भी मैंने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का भी गठन करके अभी आप देखिए कि कोई भी एमएलए मिनिस्टर का पास में या कोई सीनियर ऑफिसर का पास में नौकरी का सिफारिश करने कोई भी नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक लोगों को भी पता चल गया कि नौकरी करना है तो हमको पढ़ाई लिखाई अच्छा से करना होगा, हमको अपना एग्जाम देना होगा। तो ये एक बड़ा एक रिफॉर्म हो गया। तो इसके बाद आप लोग का अभी टीचर्स का जो मैं ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में जो बात कर रहा हूँ, दिक्कतें आएंगी, सबको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोगों को झेलना होगा। शायद 1-2 साल आप लोगों को अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है फॉर एग्जाम्पल ईटानगर नाहरलगुन में,
तो यहाँ से कहीं दूर आपको पोस्टिंग भेजता भी है, तो उस साल आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट टाइम फिर आपका जो ग्रीवेंसेस जो भी है आपका जो जेन्युइनली जो डिपार्टमेंट ने जो कुछ पैरामीटर्स जो ड्रॉ किया होगा उस पैरामीटर में अगर आप कंसिडर होते हैं तो उसको जरूर आने वाला दिनों में भी कंसिडर किया जाएगा। तो इस प्रकार का एक रिफॉर्म्स हम लेकर आना चाह रहा है और डिपार्टमेंट को पूरा फ्री हैंड देकर रखा हुआ है कि रिक्वेस्ट तो पॉलिटिशियंस लोग करेंगे, उन लोगों का भी अपना मजबूर है, मगर हम लोगों को एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ाना है, उसको सीधा दिशा में लेके जाना है। तो हम लोगों को जो रिक्वेस्ट जो पॉलिटिकली आता है उसको ऑनर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस हम लोग ने दिया हुआ है। मैं थोड़े पहले आप लोगों के बीच में जिक्र किया था कि जो यूटी के ज़माने में भले ही स्कूल कम था मगर क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छा था। अभी आज के दिन में मैं कभी कोई बहुत सरप्राइज होता हूँ कि हमारे पास जो कहीं मैं टूर में भी जाता हूँ या ऑफिस में जो डाक वगैरह आते हैं तो वहाँ पे जो बेसिक जो एक एप्लीकेशन जो लिखते हैं सेंटेंस कहाँ से लेके कहाँ जुड़ जाता है, मतलब ग्रामर का तो फिर वो तो उपाय नहीं, ग्रामर तो अभी एक ही भी नहीं है वो भी पता नहीं चलता है। और उसका क्वालिफिकेशन देखिएगा तो वो ग्रेजुएट है, मास्टर्स कर रहा है बोलता है। सो दिस आर द कंडीशंस ऑफ आवर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नाउ। देख के काफ़ी दुख लगता है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही ये पढ़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स अपने स्कूल लेवल में भी हम लोगों को करना चाहिए। अभी हमारे साथ यहाँ पे अपना CBOs लोग बैठा हुआ है, खास करके हम CBOs को हमेशा अपील करते आया हूँ कि हर एक स्कूल का जो विलेज जो कमिटी एजुकेशन कमिटी होता है उस कमिटी को बार बार स्कूल किस प्रकार से चल रहा है नहीं चल रहा है, अभी उसको जाके आप लोग जाके लोकल जो कमिटी होता है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा टाइम में जो मैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल गोम्बा तवांग में जो हम पढ़ाई करता था तो उसमें हमारा जो विलेज कमिटी जो है हर एक दिन कोई ना कोई मेंबर आके स्कूल इंस्पेक्शन में आता था कि स्कूल साफ सुथरा है कि नहीं और टीचर्स लोग यहाँ पे पूरा आता है कि नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, स्कूल का एटमोसफियर ठीक ठाक है कि नहीं है। सो ऐसे करके ये जो एग्जाम्पल है हम लोगों को हर एक स्कूल में करना चाहिए और बहुत स्कूल अक्रॉस अरुणाचल में इस प्रैक्टिस को कर भी रहा है, तो और भी हम लोगों को करना चाहिए। हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस लोग हैं, खास करके ABK हो गया, इसके बाद नेस हो गया, तो इन सब CBOs ने भी स्कूल को एडॉप्ट करना भी शुरू कर दिया है। अभी वो लोग सब स्कूल का जब ऑनरशिप लेना शुरू हो जाते हैं तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो जाता है, टीचर्स लोग भी सिंसियरिटी हो जाता है, स्कूल का एनवायरनमेंट जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो इस तरह का पार्टनरशिप हम लोगों को करना होगा। केवल सरकार का ऊपर में छोड़ देगा क्वालिटी को सुधारने के लिए तो हम लोग सुधार नहीं पाएगा। सो लेकिन जिस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हमारा CBOs और बाकी क्षेत्र से जो मिल रहा है ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छा हम लोगों को मिल रहा है। तो एजुकेशन इज ए वेरी बिग कंसर्न। और थोड़ी देर पहले मैंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया और हम लोगों का यहाँ पे जो टास्क फोर्स भी गठन किया, तो बेसिकली आप सबको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो मेजर थ्रस्ट है इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो 4 सेक्टर में जो मेजर फोकस है उसमें किया हुआ है। नंबर 1 में है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नंबर 2 में होगा अभी जैसे तेजस्वी साहब और मैडम ने जो मेंशन किया यहाँ पे ECCE के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर में। तीसरा हो गया अभी गवर्नेंस एंड डिजिटल एजुकेशन। चौथा हो गया वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचर्स एजुकेशन। तो टीचर्स का भी बराबर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों को भी और एजुकेट करने का या ट्रेनिंग करने का उसमें भी प्रोविजंस होता है। लर्निंग एक ऐसा एक चीज़ है कि हम लोग उसके लिए स्काई इज द लिमिट, उसके लिए कोई अंत नहीं होता है। आप लर्निंग करने के लिए डॉक्टरेट भी करो, फिर बहुत सारा चीज़ है, फिर पढ़ाई करके फिर डबल डॉक्टरेट भी कर सकता है। तो लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। टीचर बनने का बाद भी जो लर्निंग का जो एक क्षमता होता है वो बिल्कुल खत्म नहीं होता है। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। और हम लोग ने जो ECCE के माध्यम से हम लोग ने ये तय किया कि वी आर गोइंग टू सेट अप 300 ECC सेंटर्स अक्रॉस अरुणाचल, जो 3 साल और 6 साल का जो बच्चे हैं उन सभी के लिए। और साथ साथ अभी जो टीचर्स का जो पोस्ट टीचर का बारे में जो जिक्र किया तवाजुद्दीन साहब ने, उसको भी चेक करने के लिए हमारा IT डिपार्टमेंट के साथ में जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन जो IT का भी है, तो उनके माध्यम से हम लोग ने एक नया पोर्टल भी खोला है नो योर टीचर।
तो ये पोर्टल हर एक स्कूल वाइज में कितना टीचर्स जो पोस्टेड है विद फोटोग्राफ्स वहाँ पे आ जाता है। और इस चीज़ को मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा कि आप लोग भी उस चीज़ को देखते हुए और स्कूल्स में सरप्राइज विजिट करना भी शुरू कर देना चाहिए। पिछले करीबन 1.5 ईयर से अभी स्कूल तो पूरा शटडाउन ही बैठा क्योंकि अपना कोविड के कारण से, मगर ये सितंबर महीना से अभी स्कूल खोलना शुरू हो गया है। और इस बीच में अभी देखिए हमारा जो बच्चे लोग हैं अभी घर में बैठ के सारे एक साल से बैठ के थोड़ा सा उन लोगों का आदत भी बिगड़ गया होगा, तो इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी टीचर्स के ऊपर में आता है कि धीरे धीरे फिर उसको एक एजुकेशन का जो अपना स्कूल का एक माहौल होता है उसमें फिर लेके जाने के लिए। और जब पेंडेमिक जो आउटब्रेक हुआ था तभी भी हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारा खास करके टीचर्स लोग आप लोग पीछे बिल्कुल नहीं हटे। हमारा अरुणाचल प्रदेश भले ही जोग्राफिकली बहुत ही चैलेंजिंग एक स्टेट है, यहाँ पे हमारा IT कवरेज यानी कि नेटवर्क कवरेज बहुत ही कमज़ोर है, तो भी हम लोग ने पूरा प्रयास किया कि कोविड टाइम्स में भी हम लोगों का जो टीचिंग है ऑनलाइन का माध्यम से भी हम लोग ने प्रयास किया। और यही नहीं बल्कि हम लोग दूरदर्शन जो TV चैनल है उसका माध्यम से भी क्लास 6 और 8 को लेके पढ़ाई करने का भी हम लोग ने वीकली आई थिंक 6 डेज हम लोग ने प्रयास किया। और ऑल इंडिया रेडियो जो सबसे बड़ा रीच है उसका माध्यम से क्लास 1 to 5 में भी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाने का हम लोग ने कोशिश किया। तो क्वालिटी एजुकेशन में उस वक्त में थोड़ा बहुत ड्रॉप तो हुआ है क्योंकि फिजिकली प्रेजेंस नहीं होने से मैं भी मानता हूँ कि बच्चे लोग शायद कभी कभी सिंसियर भी नहीं होता है, मगर अभी स्कूल खुल गया है तो दोबारा फिर हमारे जितने भी जो टीचर्स हैं आप सबका ऊपर भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाता है कि उनको फिर ठीक दिशा में लेके जाने के लिए। आज इस ओकेजन पर जो हमारे तहरीर साहब ने यहाँ पे जो 1 पॉइंट टीचर्स का जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो यहाँ पे रखा रिगार्डिंग MSCP के बारे में जो रखा है, मैंने तहरीर साहब से अभी बात किया और कमिश्नर मैडम से। ये मेमोरेंडम एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है हमें उतना पता नहीं है, मगर डिपार्टमेंट की ओर से ऑलरेडी फाइल प्रोसेस कर चुका है और इसको मैं बहुत ही जल्दी कैबिनेट में लेके आप लोगों को मैं ज़रूर जस्टिस दूंगा। मैं इतना ही और साथ साथ अभी दूसरा जो हम लोगों का जो यूथ में जो खराब आदत जो चल रहा है ये है हमारा ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स के बारे में अरुणाचल में ओवर द ईयर्स जो ड्रग कंजम्पशन है वो काफ़ी तादाद में आगे बढ़ गया है। ये हम सब के लिए बहुत ही कंसर्न एक बात है, केवल टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारा सरकार के लिए, हमारा CBOs के लिए, हमारा यहाँ के पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न होकर बैठा हुआ है। इस ड्रग्स को चेक करने के लिए हम लोग ने स्टेट में अभी ड्रग पॉलिसी का भी हम लोग ने अनाउंसमेंट किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में DC के अंतर्गत में भी एक कमेटी बनाया गया है, DC हेड करेंगे और स्टेट लेवल में मुख्यमंत्री उसको हेड करेंगे। तो इसको अभी हम लोग एक ऐसे टीम हम लोगों को लड़के ये ड्रग कल्चर को अरुणाचल से बाहर हम लोग को निकालना चाहिए। जब तक ये ड्रग्स स्टेट में घूमते रहेंगे तो हम लोगों का प्रदेश का भविष्य बहुत ही डार्क में है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है, थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा कि जो हमारा यंग जो स्टूडेंट्स लोग जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं जो स्कूल कॉलेजेस में है, वही हमारा भविष्य है। तो उन लोगों को अभी से ही वो ड्रग का रास्ता में अगर जाने देगा तो हमारा भविष्य काफ़ी डार्कनेस में जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके हमारे जितने भी आदरणीय टीचर्स लोग हैं, आप लोग अपना अपना स्कूल्स में ड्रग्स के बारे में अपने स्टूडेंट्स के साथ में विचार और उसको एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लक्ष्य है हम सभी के लिए। तो इतना कहते हुए अभी मेरे साथ साथ मैं SCERT को मैं तहे दिल से SCERT के सभी टीम मेंबर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग ने बहुत मेहनत करते हुए हमारा जो 8 ट्राइब का जो अपना बेसिक जो गोल है उसको आप लोग ने किताब के रूप में लेके आया और अपर प्राइमरी में हम लोग अभी इस साल से हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश जो है काफ़ी ट्राइब्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो हमारा बेसिक एक चाहत ये भी है कि अपना रूट्स को हम लोग नहीं भूलना चाहिए। भले ही पढ़ लिख के आप बड़ा से बड़ा ऑफिसर क्यों ना बन जाता है या बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इसका इससे लिमिट जो भी बन जाता है, मगर आपका रूट्स जो भूल जाता है तो सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि अपना जो पहचान होता है अपना समाज का, उसको हम लोग नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं मनपा हूँ तो आई शुड नो हाउ टू टॉक अबाउट मनपा।
जो मोनपा भाषा हमको आना चाहिए, अपना मोनपा जो ट्राइब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अभी अपना आदि ताकिन और जिसमें सभी लोग जो अभी यंग जनरेशन लोगों को अपना भाषा आना चाहिए। लैंग्वेज तो ठीक है, वो तो अपना अपने ऊपर में है। आप इंग्लिश अच्छे से बोलिए, हिंदी अच्छे से बोलिए, फ्रेंच भी बोलिए, इटालियन भी बोलिए, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है अपना मदर टंग, वो अपना लोकल डायलेक्ट में जो है वो हम लोगों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये भाषा अगर सीखना जो छोड़ देगा तो वहीं से अपना कल्चरल इल्यूजन जो है वहाँ से शुरुआत होगा बाद में। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारा बच्चे लोग होता है घर में आने के बाद मतलब हिंदी में बात करता है, इंग्लिश में बात करता है आपस में भी। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, जानना चाहिए, मगर जो घर में जो बैठता है माँ पिताजी के साथ में या रिलेटिव के साथ में, तो अपना भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सब हम लोगों का पहचान है ये। तो अपना जो कल्चर का आइडेंटिटी है हम लोग प्रिजर्व नहीं करने से और कौन प्रिजर्व करेगा। इसलिए मैं SCERT का सभी टीम मेंबर्स और हमारा CBOs का जो गाइडेंस में जो किताबें जो यहाँ पे लॉन्च हुआ है, हमारा पूरा CBOs को भी हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट देता हूँ। और यही आशा है कि बाकी जितने भी हमारा जो ट्राइब्स है इन द सेम पैटर्न बाकी ट्राइब्स लोग भी आके हमारा SCERT के साथ में पार्टनरशिप में इनका भी अपना ट्राइब्स का भी इस प्रकार से किताब हम रिलीज करेंगे। So once again, congratulations the entire team of SCERT and CBOs. And with this, I congratulate once again to all the achievers, teachers achievers जो आज यहाँ पे आप लोगों को अवार्ड मिला है। और साथ साथ once again I wish you all a very very happy Teachers Day. जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your valuable words and briefing us about new education policy and various initiatives by Government of Arunachal Pradesh to bring quality education in our state. Now I'd like to invite Srimati Soumya Saurabh, IAS, Special Secretary Elementary Education, Government of Arunachal Pradesh, to conclude the memorable ceremony by her words. Please, ma'am. Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Honorable Education Minister of Arunachal Pradesh, respected Commissioner to FCM Arunachal Pradesh, respected Commissioner Education, dear colleagues on the dais, the state awardees, representatives from teacher associations, various community-based organizations, officials from government departments, friends from the media, ladies and gentlemen. I take this privilege to propose a vote of thanks for today's event on behalf of Department of Education. I begin by thanking our Honorable Chief Minister, sir, under whose dynamic leadership this department has been given a new vision. Sir, we express our sincere gratitude to you for taking out time from your schedule for this event and recognizing our efforts. Sir, with your mentorship, we shall strive. Thank you, sir. I would like to thank our Honorable Education Minister, sir, for constantly guiding us throughout our endeavors. Sir, we are grateful to you for your words of wisdom for us. Thank you, sir. I would like to thank respected Commissioner to Honorable CM for being so approachable. Other departments who are gracing this occasion today. I would like to extend congratulations and thanks to all the state awardees who have come here from all across the state for making this event more vibrant by their presence. I also thank the representatives of various associations of teachers for their presence today. I also express our gratitude to all the community-based organizations, to the representatives who have joined here today with their creative contributions to the department. My special appreciation goes to the band of little girls for the beautiful composition dedicated to the teachers. Lastly but not the least, I must thank all the officials from the Directorate of Elementary Education and all the support staff who have worked tirelessly for putting up this wonderful event today. I thank one and all present today. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. Thanks once again on behalf of everyone. Now may I request everyone to please rise up for national
seated. Now, I would like to request all the awardees to please proceed for group photograph to commemorate this special occasion in our mind. Please, teachers, please move forward.